आप लोग are you from like large family systems या छोटी families हैं या किस तरह? What is your family setup? My family setup, I live in combined family. Right. हमारे 2 houses हैं हाँ. साथ साथ आमने सामने and मेरी माशाल्लाह से बड़ी family है. मेरे कुछ 5 चाचा हैं. माशाल्लाह. 2 पप्पू हैं. So एक बड़ी family है and we live together. हम लोग के 2 घर हैं so. और cousins भी बहुत सारे होंगे. Cousins भी सारे. सब होंगे. और इस सब इतनी बड़ी फैमिली में तो ये हो ही नहीं सकता कि हर ईद पे और हर महफिल पे ये ना बात हो कि अब शादी करनी किसी की. हाँ जी ये तो किसी ना किसी के रिश्ते का चलता रहता है. Exactly. As far as my family is concerned, बचपन से जब से हम लोगों ने होश संभाला है सबकी एक लिस्ट होती थी कि जो मेरी बीवी या मियाँ होगा उसमें ये होगा ये होगा ये ना हो ये ना हो ये ना हो. क्या आप लोगों की फैमिलीज में भी कोई ऐसी लिस्ट बनती हैं? So my family, I think my family is pretty isolated because jitne bhi my relatives hain, they moved abroad. Right. So it's Amma and Abba, and we were the 4 of us, and then 2 of my sisters got married, that 2 abroad. So it's just the 2 of us left. But I have really cool parents. They're extremely cool. If you like someone, go ahead, marry them. If you don't like anyone for the rest of your life, be with That's so cool. That's so good. So even my father, and my father is mashallah going to turn 67 next year. Mashallah. He's still very cool. So कहते हैं ना वो generation different सोचती है भाई. My parents are very cool. But yeah, for my mother and my father, they keep telling us that look for someone who is there to. It's very complicated to word it out. But you know, every person changes. So my mom, she keeps saying that when you change, the other person will have to adapt to that, and you'll have to adapt to their change. तो जब ये chemistry चलती रहेगी ना, तो फिर रिश्ता बनता है. So if you see that happening, that's when you should say. Because evolution है ना, human beings भी evolve कर रहे हैं. Every month, year, whatever. So yeah. So ये एक ही चीज होती है हमारी लिस्ट पे तो that's it. Nothing else. So what is it in your characters that appeals to each other online? Oh, that's such a complicated question because characters के बावजूद we're under disguise of something else, right? Yeah. So 2 layers to that. So like हमें एक दूसरे के बारे में कुछ अपील नहीं किया. कुछ नहीं किया. We I think I should be saying this or not, but we hate each other character. हमारे character. हाँ वो तो नजर आ रहा है. वो ऐसा नहीं है. UPS वाला और UPS वाला इन चाय वाला वो तो teasers में भी है जिस तरह. So वो एक दूसरे के अंदर तो they don't even know कि हम exist करते हैं. मेरे लिए मेरे character के लिए ये exist नहीं करती क्योंकि मैं जिसके लिए हूँ वो social media पे fake ID बना के that's only because वो एक upper class and अंग्रेजी बोलने वाली पढ़ी लिखी एंड so वो इस तरह की लड़की तो वो उसको अपील करिए थोड़ा हायर स्टैंडर्ड ऑफ का लिविंग है ये एट द सेम टाइम इसको अपनी जैसी लगती है so तो वो एक दूसरे के साथ नहीं है. so there's Sohail and he is a UPS वाला और कंप्यूटर वाली दुकान है और जॉइंट फैमिली में रहता है और उसने जो आईडी बनाई है उनका क्या I'm forgetting the name. Nofal, right? Or Nofal is a friend. Nofal is my old friend. Your own friend जिसकी आपने identity चुरा के. And who's rich? He's very rich and वो उससे कहीं ना कहीं वो होता है that he always look up to him that मुझे इसकी तरह बनना है. इसकी तरह बनना है. तो aspirational उसकी life में role model जो है वो Nofal है. तो Nofal पे Facebook page पूरा बन जाता है. And your character is Salma. Who's under the disguise of Natalia. Natalia, of course, and Salma is of course somebody who's progressive. Salma is my baby. Poor girl. I look at her and I'm like, क्या करूँ मैं इसका कोई इसको पैसे दे दे बहुत सारे कपड़े खरीद ले. 1 of 3 sisters है ना और तीनों के रिश्ते माँ ढूंढ रही है. माँ of course is extremely cool Beo Zafar and of course extremely cool Mohammed Ahmed साहब as well. अब वो रिश्ते ढूंढ रही हैं अपनी तीनों बेटियों के और सलमा कह रही कि मुझे प्लीज अपनी जिंदगी मेरे तरीके से. ये शुरू में नहीं कहती. I shouldn't like is this giving out the narrative, but then she's technically focusing on the first 2. वो नजर आ रहा है कि एक बाहर का चाहिए और एक पढ़ा लिखा चाहिए. तीसरी की बात ही नहीं होती क्योंकि तीसरी तो हैंड मी डाउन्स ले लेके अपनी जिंदगी भी गुजार रही है और वो खुद ही कोप अप करनी है कि मैं किस तरह से अपनी जूस और चाय पिला के यूपीएस वाले को यूपीएस वालों को मेहमानों को रिश्ते वाली आंटी को और खुद भी बस चाय दैट्स अ लाइफ. एंड या और उनको मिलती है ऑनलाइन एक पर्सनालिटी नतालिया. That's via something else, but then Natalia she stumbles upon that personality. वो जब आप देखेंगे उसका कनेक्शन आपको समझ आएगा कि ये नतालिया क्यों
कहाँ से आई एंड ये इसने तालिया क्यों चूज किया, मैंने नोफिल की आइडिया क्यों चूज की, तो उसका रीजन when you watch it of course, and there are so many small nuances and there's small humor tucked here and there, and it's so I think that's the beauty of the script. इसमें because अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे that comedy हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, although it's light hearted, it's not a comedy play, it's emotional play as well. एक राइड है, हर कैरेक्टर का अपना एक ग्राफ है, बट हम लोग to certain social issues also. yeah exactly, and वो वाली चीज नहीं है that you know we're trying to make them laugh. अगर से कॉमेडी हो भी रही है तो सिचुएशंस इस तरह की हैं, सीरियस सिचुएशंस हैं, एंड इसमें सीरियस फेसेस ही हैं, बट वो आई एम श्योर स्क्रीन पे जिस तरह आएंगी चीजें वो itself it's going to be a treat. It's going to be it looks like it ऐसा लगता है जैसे एक मिठाई का डब्बा है जिसमें बहुत सारी मीठी मीठी चीजें निकलेंगी, एंड यू नो मजा आएगा बाद में, शायद स्वीट ओवर स्वीटनेस का भी आपको अटैक हो गई, यू नो, लेकिन ये कि it looks really good. And what's great is that Nareen and Umaira Ahmed are both known for very serious filmmaking and serious kind of drama making, so ये भी एक बहुत बड़ा intrigue factor है. बिल्कुल कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है आजकल के सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट में, और मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अगर हम 70s 80s की कॉमेडीज देखें, इवन इन पाकिस्तान अब्रॉड, प्रोग्राम्स लाइक माइंड योर लैंग्वेज जो मेरे ख्याल है आप लोगों से बहुत पहले, और पता नहीं आप लोगों ने देखे भी हैं कि नहीं, माइंड योर लैंग्वेज इवन 50-50, वो उसमें इतनी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें होती थी. देयर इज सो मच रेसिज्म, देयर इज सो मच सेक्सिज्म इन दोज ड्रामास, बट दे वर हिलेरियस. आजकल कोई कॉमेडी कैसे करता है? हाउ डू यू डू कॉमेडी विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक फॉर इट नाउ? आई थिंक ये जो तभी हम कहते हैं डार्क कॉमेडी वाला एलिमेंट, अगर आप किसी का मजाक ना उड़ाए बगैर, शक्लें बनाए बगैर, किसी के हाइट बॉडी चीज़ पे कमेंट किए बगैर, बिकॉज एक ज़माना था जब लोग इस पे कॉमेडी सेल किया करते थे, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ. अब वक्त बदल गया है, अब लोगों के पास भी इतना एक्सपोजर है दैट लोगों को वो चीज़ें फनी नहीं लगती हैं. सो इसमें स्पेसिफिकली अगर कॉमेडी मैं इस तरह देखता हूँ एज एन एक्टर, कॉमेडी या तो होती है या तो नहीं होती. देयर इज नो लाइक बीच की लाइन, मिडिल ग्राउंड नहीं. हाँ, क्योंकि और अगर कॉमेडी का अगर एक सीन अगर यहाँ पे कॉमेडी रिक्वायर्ड है, अगर वो मिस हो गई बीट तो वो मिस हो गई, अब वो मैं दोबारा कर भी लूँगा तो वो शायद मैकेनिकल है. सो इट्स मोर अबाउट सिचुएशंस, और वो सिचुएशंस किस तरह की हैं, वो क्या डिलीवर कर रही हैं. आई थिंक वो दैट इज कॉमेडी फॉर मी आज की उसमें, अगर इस प्ले में मैं बात करूँ, रादर देन वो जो आपने बात बोली है, दैट इज वेरी ओल्ड स्कूल नाउ. लेकिन क्या इंसान बदल गया है वक्त के साथ? नहीं, वही वाली बात है ना कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज टू ईच वन देयर ओन. देयर आर पीपल who exist in the same country around the globe, different countries, who enjoy making fun of each other. Bilkul. And then they have this great, like, you know, feeling that, oh, this is such a amazing gratification कि मैंने मजाक उड़ाया और audience हंसी. So that, but one shouldn't do that because that's contradictory to all the actual issues that we stand up for. So as a performer, if I were to say कि body shaming is not a good idea, but the next day I'm doing comedy and making fun of somebody else to make the audience laugh, they'll be like, what kind of दोगला person is this? कि वरना इंटरव्यूज में आके ये बोलती है, सोशल इश्यूज पे खड़ी होती है, और कॉमेडी में इसी चीज को बना के मजाक उड़ा रही है. अगर उसी चीज को बना के आप सोशल इशू को केटर कर जाएं in a positive way, that is the beauty of it. I'm sure it's difficult to write like that, but then बहुत मुश्किल है. वो मुश्किल है. It's easier to target that आप than अपना this. मैसेज भी कन्वे कर दो with a good storytelling, and साथ साथ वो ये ना लगे कि मैसेज आपको बकायदा सोपा जा रहा है, वो ना लगे कि वो आपको पता भी ना चले कि एक लाइट हार्टेड तरीके से कहानी के थ्रू, एक लव स्टोरी के थ्रू वो किस तरह मैसेज डिलीवर हो गया. आई थिंक वो वाली क्वालिटी इस स्क्रिप्ट में है. बिल्कुल. Which is why I think filmmaking, web series, shows, TV, everything is not a piece of cake. True, I mean, it's a proper process. The written content, the director, the collaboration of the two, and then it's not whatever. It's a process. It's a process completely. लेकिन जो स्टैंडर्ड कॉमेडी है उसमें तो even now all around the world, if you take Kevin Hart और Dave Chappelle, ये सब लोग picking on celebrities करते हैं. नहीं, ये तो body shaming और but then it's all in the guise of comedy, और कहते हैं कि जी जायज़ है. फिर लोगों को कैसे हंसाएं? लोग तो स्लैपस्टिक पे लोग को गिरता है केले के छिलके पे, चार्ली चैपलिन के ज़माने से तब हंसी आती थी. तो अब कॉमेडी करना, which is why I think that this is such a big challenge कि 18 episodes में मेरीन ने अभी मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला 18 episodes of a drama serial में लोगों को constantly entertain रखना
तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं मतलब कॉमेडी के, आप लोग कितना रिवील कर सकते हैं? बहुत कॉमेडी के बहुत इस तरह ऐसा नहीं कॉमेडी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, बिकॉज इट्स स्टोरी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनके सब हर कैरेक्टर का अपना ट्रैक चल रहा है। हाँ, मुझे ओवर द टॉप नहीं लग रही। या सबके अपने लव ट्रैक्स भी हैं, एंड प्लस वो एक जिस तरह मदिया ने कहा कि स्टोरी एक इशू के ऊपर भी बात कर रही है। अब उस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि दो फैमिलीज की कहानी है, उनकी आपस की इंटरेक्शंस हैं, तो वो सिचुएशन जिस तरह की लिखी हुई है वो सिचुएशंस फनी है। इट्स नॉट कि मेरे पास कोई पंच लाइन्स हैं, इधर इनके पास कोई पंच लाइन्स हैं, एक्सेप्ट बियो आंटी, सो उनके पास and she improvises on the spot and then you're like, oh my god, I want to laugh, but I can't. But I don't want to repeat my answers, but sadly I've already एक जगह मैंने बात बोली पर मैं दोहरा देती हूँ। But the idea, that's the beauty of comedy. So my mother, she's screaming at me, she's scolding me, or maybe I'm screaming at my mother, different situations में, and the other actor is trying to hold the laughter, but it's a very serious situation. Do you understand? That's how the comedy is here.